Kumar, and I'm PhD research scholar in department. Uh, Today, for this lecture, I'll be with you till the end of this lecture as a convener, and or this lecture actually. Today's lecture is on the topic of how to conduct a social science research, especially the social science research for this the problem that we generally face in the starting of going for the PhD and other social project or research project. For this topic or the lecture, we have with us Professor Manish Kumar Verma. Sir is a professor in Department of Sociology in Ambedkar University, Lucknow. It's a Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Central University, Lucknow. Sir, it was like it has been the privilege for me also. I was also part of this school that you are dean for in Department of Economics. I did my MPhil under the supervision of Professor Naik sir. Naik sir. Uh, for further going, we such it's really a great honor for us or for the platform that Indian Research Scholar Association. Sir, we have been running or we have been organizing the lecture on various topics such as research methodology and even the current issue that generally we face in social science related to any current issue. So, sir, for first of all, I welcome you, and I welcome all the participants of the those who has joined this association. For further further program, I request Mr. Bikas to introduction about the association or for the welcome speech. Bikas ji, it's over to you. Okay, okay. Thank you so much, Asuni ji. And it's a really honor for also me and also for the Indian Research Scholars Association that Professor Manish Kumar Barma sir has accepted our invitation and also has selected a very ठीक uh, है, आप 1 मिनट नहीं 5 मिनट Yes, can लीजिए, you लेकिन hear? मेरा or so I will not take much and more time. Directly, I would like to request to Manish sir. Sir, you're most welcome, sir, and we are waiting for your lecture, sir. Thank you, sir. समझ गया ना हाउ टू कंडक्ट रिसर्च। तो मैं तो सब यंग रिसर्च स्कॉलर और मुझको बहुत अच्छे से पता है आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब भी आप रिसर्च करते हैं। तो मैं जब आपसे इंटरैक्ट करूंगा तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपके मन में जो दुविधा है उसको आप खत्म कर सके, ठीक है। और इसके लिए आपको इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, प्रश्न मुझसे पूछना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा और उसके लिए कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो फिर होगा क्या कि मैं दीवार के सामने खड़ा होकर बोलता रहूंगा और आप में से 90% लोग जो है ना Okay, sir. Okay. So I request to all participants. अपने में रहे, जी सर, हमसे बिल्कुल बातें सर। करें तभी जाके फायदा होगा इस लेक्चर जी का। जी और सर, जी आप सर, अपना स्टार्ट कीजिए, आप इंट्रोडक्शन देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल Yes, सर। Bikas ji, please go ahead. हाँ, सो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कृपया अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लें, क्योंकि ये सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव होने जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी कृपया अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। आज नहीं है विकास जी। जी जी जी। अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है? विकास जी, विकास थोड़ा जी सा आवाज नहीं नेटवर्क आ रही। एरिया में जाइए। अतुल जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, now it is clear. ओके, सो एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लें, क्योंकि ये सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव होने जा रहा है। तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कृपया अपना जो कैमरा है उसको ऑन कर लें। और हम बहुत ही सो थैंक यू सो मच।
Rasuni ji, and most welcome to the our today learner speaker, Professor Manish Kumar Verma, sir. I would like to welcome to the convener, co-convener, and entire organizing team of the India Research Scholar Association for such a wonderful session. And I would like to also welcome to the all uh, participants, those have joined from the various institutions, universities. So I would like to welcome on the behalf of me and on the behalf of the Indian Research Scholars to all of you. तो जैसे कि हम लोग हिंदी में सुनते हैं कि हीरे के कण को और विद्वान के क्षण को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हीरे के कण को यदि आप बर्बाद कर देते हैं तो आप उसको अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन विद्वान का क्षण यदि बर्बाद हो जाता है तो हम उसको अर्न नहीं कर पाते हैं। सो आई विल नॉट टेक मच एंड मोर टाइम, सो I would like to request to Ashwini Kumar sir, please see the further proceeding. Thank you so much. Thank you, Vikas ji. So one more activity is your introduction. I know कि कोई आपके परिचय से वंचित नहीं है. Sorry for interpretation, sir. Professor Nidhi Jain, madam, Dean of Social Science Faculty in our university and Head of the Department Economics, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, has joined today's session. So on the behalf of me, I would like to your welcome to Professor Nidhi Jain, madam. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you join करने के लिए. For brief introduction, Professor Manish sir. Sir is Dean of Ambedkar Studies, Social Ambedkar Social School of Social Science, and also Dean of Vocational and Futuristic Studies. Sir has been the professor in sociology, social department of sociology. Sir, and sir is also the like a member of ICSSR Delhi. Sir did his PhD in from the JNU and masters और MPhil also सर का JNU से ही रहा है. So sir is सर के पास 25 साल से ज्यादा का टीचिंग का और रिसर्च का एक्सपीरियंस है. तो इसी के साथ में सर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप अपना थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच विकास जी, आप लोगों ने मुझको आमंत्रित किया और मुझको मौका दिया कि मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकूं, और ये अत्यंत खुशी की बात इसलिए भी है मेरे लिए कि मैं बहुत यंग स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर इनवाइट कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि अगर देश का भविष्य अगर रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा करेगा तो वो केवल आप ही के कंधों पे डिपेंड करता है. कैसे करना है, कौन सी प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन सा रास्ता सही रहेगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जो पीएचडी थीसिस मेरे पास आती हैं और जब मैं देखता हूं उसको तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं. जो 90% थीसिस आ रही हैं उसमें शोध के बारे में बेसिक्स नहीं रहता है. जो है वो सही दिशा में भारतवर्ष में नहीं जा रही है, और उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि शोध करना कैसे है ये हमें पता ही नहीं. और जब हम एज ए स्टूडेंट खुद नहीं सीख पाएंगे, जब हम कल को जब हम टीचर बनेंगे तो वही सारी समस्याएं आएंगी. अब अपने स्टूडेंट को वही सिखाइएगा जो आपने सीखा है. इसलिए हमारा ये मानना है कि शोध किया कैसे जाए इसके बारे में हमारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है. हम लोग सारे स्टूडेंट हैं. ये अलग है कि मैं थोड़ा बड़ा स्टूडेंट हो गया हूं, मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूं, सीख रहा हूं, तो उम्र ज़्यादा हो गई है. आप लोग थोड़ा यंग है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन के पड़ाव पे, मोड़ पे कुछ ना कुछ रिसर्च किए होंगे.
और रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। अगर किसी चौराहे पे 4 आदमी खड़े हैं और हमारे मन में कौतूहल उठता है कि वो वहां क्या घट रही है और हम उसको पता लगाने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च जो है वहीं से स्टार्ट होता है। में मैं मानूंगा कि रिसर्च जो है उसको अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एक को हम बोलते हैं सोशल सर्वे और दूसरे को हैं सोशल रिसर्च। सोशल सर्वे क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? ये आप लोग कि आप बहुत सारे एग्जाम्स को लिखते रहते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं, बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च? देखिए, मैंने जो पहला बात कहा था कि चौराहे पे 4 लड़के अगर खड़े हैं और हमारे मन में कोई कौतूहल है जानने का, तो इसको हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन जो होता है वो कॉन्क्रीटाइज नहीं होता, कैजुअल होता है। ठीक है, कैजुअली आप कहीं से जा रहे हैं, कुछ देख लिया, कुछ समझने का प्रयास किया और उसके आधार पे आपने इन्फरेंस ड्रॉ कर लिया। आपके घर के सामने फला सर्फ के प्रोडक्ट के बारे में, कार के चाहता हूं कि क्या ये मॉडल सक्सेसफुल हो पाएगा क्या मार्केट में, और आपसे 10-5 क्वेश्चन पूछ लेता है वो, और आप ही की तरह वो 10-20 और 50 आदमी से होगा, उसको कंपाइल करके उसका रिजल्ट जो है उस कंपनी को दे देता होगा। सारी बात तो ये जो हो रहा है इसको हम सोशल सर्वे कहते हैं। सोशल सर्वे जो है लेस रिगरस होता है, शॉर्ट टर्म होता है, बहुत कम है, और ये टारगेट ओरिएंटेड रहता है। कुछ जैसे रिजल्ट जो है या उसका अहमियत या उसका जो खासियत जो है या इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए खत्म हो जाता है या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सोशल सर्वे जो है वो शॉर्ट टर्म, लेस रिगरस, एक अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी सोशल इशू के बारे में, किसी भी कॉमर्शियल इशू के बारे में, या कोई भी जो है इंस्टीट्यूशनल इशू के बारे में। और वही इसे आगे परे हटकर तीसरे लेवल पे आता है सोशल रिसर्च, जिसकी चर्चा हम लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और जिसमें हम जानने की इच्छा भी रखते हैं। सो व्हाट इज सोशल रिसर्च? मेथोडोलॉजी, थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग एक रिसर्च वर्क होता है जिसका लॉन्ग टर्म इंपेरिकल जो है इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब हम सोशल रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च होता है, और उसको करते हुए जो है जो थियोरेटिकल अंडरपिनिंग्स होते हैं, जो भी इंपेरिकल अंडरपिनिंग्स होते हैं, जो भी मेथोडोलॉजिकल जो प्रोफिशिएंसी होती है, उन सारे चीजों को उसमें हम इनकलकेट करके उसको करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप ये मान के चलिए कि जो हम एज ए पीएचडी स्कॉलर जो रिसर्च का काम करते हैं, या कभी कभी आप सुनते होंगे एज ए टीचर कि आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं, या आईसीएसआर अभी देखते होंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करा रही है, ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आपने देखा कि शॉर्ट टर्म बहुत सारा प्रोजेक्ट निकला था आईसीएस का 6-6 महीने का, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या इम्पैक्ट हुआ, या फिर जो है उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार चला रही है उसका क्या, ये जो स्टडीज कराने रिगरस नहीं हो पाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिंपल ऑब्जर्वेशन, सोशल सर्वे और सोशल रिसर्च, इन तीनों में अंतर क्या होता है।
तो एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस और एज ए पीएचडी स्कॉलर हम लोग जो है सोशल रिसर्च करते हैं, ठीक है। होती है हाउ टू बिगिन अ सोशल रिसर्च, हाउ टू कंडक्ट अ सोशल रिसर्च, कोई बता सकता है? कुछ इंटरैक्टिव रहिए आप प्रॉब्लम, लोग। अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन फाइंड, हाँ। मतलब प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन ही द बिगिनिंग ऑफ आई थिंक रिसर्च। और कोई एनीबॉडी एल्स? सबसे पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं और फिर हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं कि जहाँ से हमको रिसर्च करना है, हम उसके हिसाब से क्वेश्चनेयर वगैरह बनाते हैं जिससे हम उस टॉपिक पे जाते हैं, हम रिसर्च रिसोर्सेज वगैरह भी उसके लिए इकट्ठा करते हैं कि कहाँ पे स्टडी के बाद फिर हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एनीबॉडी एल्स? सबसे पहला देखिए प्रश्न ये उठता है कि किस, आप मोस्टली हमको लगता है कि आप लोग सारे लोग पीएचडी कर, है ना? कुछ लोगों ने सिनॉप्सिस बना लिया होगा, कुछ लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया होगा, कुछ लोग और एडवांस स्टेज में होंगे, या कुछ लोग अभी हो सकता है टॉपिक सिलेक्शन के में हो। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई किस टॉपिक पे पीएचडी किया जाए, और ये एक बड़ा कठिन विषय है। ये ज्ञान का अभाव हो और आप पहली बार जो है उस एरिया में लैंड करने जा रहे हैं, आप ये सोचने जा रहे हैं कि कैसे रिसर्च किया जाए, तो ये आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत जटिलताओं के दौर से गुजरे होंगे जब आपने गाइड के पास गए होंगे और ये कहे होंगे कि सर बताइए किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूं। और जब आप गए होंगे दो संभावनाएं हुई होंगी। पहला संभावना ये होगा कि आपके टीचर ने रेडी टू हैंड आपको एक टॉपिक दे दिया होगा कि जाओ कास्ट इन इंडिया के ऊपर काम कर लो या फैमिली इन इंडिया के ऊपर काम कर लो। या दूसरी संभावना ये हुई होगी कि उन्होंने कहा होगा कि अपने रुचि के विषयों को सेलेक्ट करो और फिर आके हमको बताओ क्या करना चाहते हो। अगर पहली संभावना हुई होंगी तो मैं ये कहूंगा कि टीचर ने आपको हैंडीकैप्ड बना जो है सोच कीजिए, आप लाइब्रेरी में जाइए, गूगल में सर्च कीजिए और आकर आपको बताइए कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। आप कैन कम आउट विद 3-4 प्रोबेबल टॉपिक्स या मैक्रो लेवल आप इश्यूज लेके आइए मेरे सामने और आकर बताइए। और हमको लगता है कि ये सही रास्ता है जब आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं अपने पीएचडी के शोध के विषय के, ठीक है। आपने खैर जो भी रास्ता अडॉप्ट किया हो, मैं 2-3 चीजों को इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा इस जगह कि हमें टॉपिक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखते हो कि कहीं इंटरव्यू देते हो और आपसे पूछता होगा कि भाई किस टॉपिक पे पीएचडी करते हो, अपने टॉपिक का नाम बताते होंगे, तो इंटरव्यू बोर्ड कोई क्वेश्चन पूछने लगा। एक दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जब आप जैसे ही अपने पीएचडी के टॉपिक को बताइए, इमीडिएटली जो है इंटरव्यू बोर्ड उसमें इंटरेस्टेड हो जाए और पूछने लगे, अच्छा यू आर डूइंग दिस थिंग, टेल मी व्हाट इज दिस, हाउ डिड यू गो अबाउट दैट, व्हाट इज योर फाइंडिंग। मतलब वो इतना इंक्विजिटिव हो जाए कि वो उसी से आपसे 10-5 क्वेश्चन पूछ दे, और जैसे ही 10-5 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने 5 साल 4 साल रिगरसली उस टॉपिक पे काम किया हुआ है तो आप आराम से उसको डिफेंड के जवाब दीजिएगा, और कहीं ना कहीं वही आपका जो है वो रास्ता बना देगा आपको सक्सेस दिलाने का उस इंटरव्यू में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए तो प्रमुख बातों को ध्यान में रखिए। पहला, या तो वो टॉपिक मोस्ट डिस्कस्ड हो, हर आदमी उसके बारे में बात करता हो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, समझ में आ रही है बात। ये ऐसे विषय हैं जिसके बारे में पूरा दुनिया चर्चा कर रही है। वाटर इशू है ना,
तो ऐसे विषय पे आप अगर कुछ नए परिप्रेक्ष्य से अगर शोध करने का सोचते हैं तो कोई भी आदमी इंटरेस्टेड रहेगा कि भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या फाइंडिंग होगा और उसका फाइंडिंग किस तरीके से पॉलिसी लेवल जो है उसको जो वस्तु स्थिति है उसको सुधारने में प्रयोग किया जा सकता है ना। दूसरा, मोस्ट रेयरेस्ट ऐसा विषय जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ, और जब कोई काम नहीं हुआ हो और आप पहला व्यक्ति होंगे, दूसरा व्यक्ति होंगे उस पर काम करने के लिए, तो नेचुरल है कि आप फर्स्ट रहिएगा और जब भी उस विषय का नाम आएगा तो लोग आपका नाम लेंगे और आने वाले दिनों में जो है आप एक बहुत ख्याति प्राप्त जो है शोधार्थी के रूप में जाने जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां तक मुझको पता है आप लोग डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, कोई सोशियोलॉजी का है, कोई साइंस का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, इसलिए मैं सोशल साइंस बोल रहा हूं। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस हमारा फोकस दो चीजों पर रहेगा, या तो हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर टॉपिक पे काम करें और जिससे कि उस पर काम करने के बाद हम पायनियर हो जाए उस फील्ड में और हर आदमी जो है मेरे वर्क को कोट करे और मेरे वर्क के फाइंडिंग्स को समझने का प्रयास करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम मोस्ट डिस्कस टॉपिक पे काम करें जिसके पीछे पूरा दुनिया भाग रहा हो, पूरा दुनिया समझना चाह रहा हो कि विश्व जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और तब जो है आपका फाइंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ना केवल एकेडमिया के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए, बल्कि सोसाइटी के मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि अगर कुछ रिफॉर्म्स करना है, कुछ सुधार करना है या कुछ बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना है तो ये फाइंडिंग्स जो आपने रिसर्च किया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप भविष्य में उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप घिसा पिटे टॉपिक कीजिएगा, मान लीजिए कास्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं, रिलीजन के ऊपर काम कर रहे हैं, 10,000 काम ऑलरेडी हो चुका है, 10,000 एक काम आपका और हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा और आप भी जो उस काम को कीजिएगा उसको दोबारा पलट के नहीं पढ़िएगा। समझ गए ना? थीसिस लिखने के बाद जब जिस दिन डिग्री अवार्ड हो जाएगी उसके बाद आप दोबारा उस थीसिस को पलट कर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आपको खुद, तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपने आप को किस तरह के रिसर्चर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक ऐसा रिसर्चर जो उस किताब के कारण जो है नेम और फेम अर्जित करे, या एक ऐसा रिसर्चर जो भीड़ में अपने आप को खो देने के लिए तैयार है ना। और आप देखते होंगे कभी कभी आप डिस्कशन करते होंगे और बोलते होंगे कि भाई इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, और इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में 5 स्कॉलर्स का नाम लेते होंगे आप, अरे उनका किताब पढ़ लेना बहुत अच्छा है, that person is name in that field, या डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, से फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आप बात कर रहे हैं, ये कौन वो लोग हैं? ये क्या सीधे पैदा हो गए थे उस तरह का बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में, या वो भी कभी हमारे आपके जैसे जो है यंग रिसर्च स्कॉलर रहे होंगे? कोई भी आदमी विद्वान होकर पैदा नहीं होता है, ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है जो लगातार काम करते रहता है व्यक्ति, और किसी एक खास एरिया में जो है तीसरा बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं उस एरिया को इंसर्कल कर लीजिए और उसी एरिया में लगातार काम करते रहिए, अपना आर्टिकल भी उसी में पब्लिश कीजिए, बाकी सारी काम में भी जो कर रहे हैं आप रिसर्च का उसी एरिया में करें, तो जिसके साल के बाद आप एक नोन स्कॉलर हो उस फील्ड में। समझ गए? और ये नहीं कि एक आर्टिकल जो है कास्ट के ऊपर कर दिया, दूसरा आर्टिकल फैमिली के ऊपर कर दिया, तीसरा रिलीजन के ऊपर कर दिया, चौथा के ऊपर कर दिया, पांचवा पॉलिटिक्स के ऊपर कर दिया, तो फिर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाइएगा, मास्टर ऑफ नन हो जाइएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप ध्यान में रखनी है एज ए यंग रिसर्च स्कॉलर कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। नाउ सपोज यू हैव सेलेक्टेड ए टॉपिक, कोई भी आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और नो डाउट जो मैंने गाइडलाइंस दिया है, जो डिस्कस किया आपके अनुसार, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने वो सेलेक्ट कर लिया। नाउ हाउ टू गो अबाउट दैट?
टॉपिक सेलेक्ट करते समय 2-3 चीजों का ध्यान ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पहला तो जब मैंने कहा कि टॉपिक या तो बहुत रेयरेस्ट हो, बहुत यूनिक हो या मोस्ट डिस्कस्ड हो। दूसरा, हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो है, जो वर्ड्स हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो यूनिवर्स जो है एक्सेसिबल हो। जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जहां पे हम फील्ड वर्क करेंगे, वो एक्सेसिबल होना चाहिए, वहां पे आप पहुंच सकते हैं। आपने कहा कि मैं एक्स टॉपिक के ऊपर काम करूंगा और मेरा फील्ड वर्क जो है यूएस और रशिया में होगा। जब आपने साल 2 साल उस टॉपिक पे काम कर लिया और जब फील्ड वर्क करने के लिए यूएस और रशिया जाने की बात हुई, तो आपको पता चला कि पैसा ही आपके पास नहीं है या दूसरे और किसी कारण से जो है आप वहां नहीं जा सकते। नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस? आपका जो फिजिबिलिटी था उस स्टडी को करने के लिए वो शायद नहीं हो पाएगा, और नतीजा ये होगा कि फिर आप भागे भागे अपने सुपरवाइजर के पास जाइएगा और जाकर बताइएगा कि सर वो फील्ड वर्क जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और तब सुपरवाइजर भी सर पकड़ के बैठ जाओगे और आप भी सर पकड़ के बैठ जाइएगा। तो जो भी टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें वो ये है कि उसका जो फील्ड आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो फील्ड जो है होना चाहिए, आपके लिए फिजिबल होना चाहिए, वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे पहुंच सकते हो, वहां पे जाकर रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो होता है किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए, वो ये है कि उससे रिलेटेड सेकेंडरी लिटरेचर अवेलेबल हो। अगर सेकेंडरी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो दो संभावनाएं हो सकती है। या तो आप ऐसे किसी यूनिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ हो, और तब आप उस एरिया में फर्स्ट होइएगा और आपको बहुत रिगरस काम करना पड़ेगा उस एरिया में, आपको थियोराइज करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप से करना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम क्वाइट चैलेंजिंग। अगर उस चैलेंज को आप लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। ठीक है। लेकिन अगर उतना चैलेंजिंग काम नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेकेंडरी लिटरेचर उससे रिलेटेड अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि सेकेंडरी लिटरेचर का काम क्या होता है? जब आप सेकेंडरी लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इस फील्ड में क्या काम हुआ है या क्या काम नहीं हो पाया है, और जब आप राइट अप करते हैं तो आप देखते हैं सेकेंडरी लिटरेचर से जो है आप सब्सटेंशिएट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को। ये सब करने के लिए आपको सेकेंडरी लिटरेचर होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर जो है आपको आने वाले दिनों में जो है दिक्कत आएगी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा। सिनॉप्सिस का नाम आई एम श्योर कि आप लोग, सिनॉप्सिस जो है वो खाका है, वो नक्शा है जिसके आधार पर पूरा आपका मकान बनेगा, इमारत बनेगी। अगर आपने नक्शा बहुत अच्छा बना लिया तो आपको इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी बड़ा इमारत बनाना चाहें आप। लेकिन नक्शा आपने गलत बना दिया है या कंफ्यूजिंग बना दिया है, आपको खुद ही पता नहीं है कि सिनॉप्सिस में आप क्या करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका पीएचडी जो है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं बता दूं कि पीएचडी करना चुटकियों पीएचडी कर सकते हैं हंसते खेलते हुए, और नहीं तो वो पीएचडी जो है वो मकड़ी का जाला आपने देखा है ना, मकड़ी जो अपने जाले को बनाती है कुछ दिन के बाद उसी जाले में फंसकर जो है वो मर जाती है। तो आप भी अपने बनाए हुए जाले में ट्रैप हो जाइएगा और पीएचडी नहीं कर पाइएगा। और अगर अच्छे से खुशी, अगर आपको गुड पीएचडी, तो आपका सिनॉप्सिस बहुत अच्छा होना चाहिए। सिनॉप्सिस में एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका हाइपोथेसिस है, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन है, किस मेथोलॉजी को आप अडॉप्ट कीजिएगा, कौन सा यूनिवर्स सेलेक्ट कीजिएगा, किन लोगों के ऊपर आप फील्ड वर्क कीजिएगा, कितने लोगों का फील्ड वर्क कीजिएगा, कौन सा जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप लेके चलने का प्रयास कीजिएगा, कितना चैप्टर होगा और किसके चैप्टर में क्या क्या लिखना है। ये सारी चीजें अगर आपने अपने सिनॉप्सिस में शुरू में ही क्लियरली लिख दिया
और आप खुद भी समझ गए तो शायद आपको उसको उस नक्शे को पकड़कर आगे पहुंचने में, मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप चीजों को करने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं या खुद भी क्लियर नहीं रहते हैं, तो आप जाकर आने वाले दिनों में खुद ही फंस जाइएगा उसमें, और उसके बाद आप अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करिएगा ही, अपने सुपरवाइजर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दीजिएगा। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हाँ, मतलब नहीं कर पाया पीएचडी, और नहीं कर पाया उसके पीछे यही रीजन था कि उसने ज्यादा होशियारी की। मैंने उसको कहा कि जाकर आप फील्ड का स्टडी करो और देखो कि कहाँ आपका फील्ड वर्क करना है। वो घर गया, घर पे जाके सोता रहा और आगे झूठ मूठ का बता दिया कि सर वहां पे अलवर के पास 2 या 3 सेज प्रोजेक्ट आ रहा है, उसी का स्टडी मैं करूंगा। मैंने उससे पूछा कि आपने स्टडी कर लिया, जाके देख लिया? उन्होंने कहा कि हाँ कर लिया, सब कुछ पता कर लिया है। सिनॉप्सिस हो गई, सारा काम आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद जो है, 2 साल के बाद जो है, वो आता है, कहता है कि सर वो प्रोजेक्ट जो है वहां पे है ही नहीं, वो प्रोजेक्ट जो है वहां पे है ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि भाई जब प्रोजेक्ट नहीं है और आपने कहा था कि मैं गया हूं, मैं देख के आ रहा हूं वहां पे, और वहां प्रोजेक्ट है ही नहीं, और आपने सिनॉप्सिस पे बना दिया, आपका सिनॉप्सिस पास हो गया, 2 साल आपने काम भी कर लिया, अब यहां से कमिंग बैक का क्या गुंजाइश है, ये बता दीजिए। बहुत कांड था उसमें, और वो लड़का जो है पीएचडी नहीं कर पाया, ड्रॉप हो गया। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च अपने लिए कर रहे हैं, अपने सुपरवाइजर के लिए या अपने इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका सुपरवाइजर आपको कुछ कहता है तो आपको लगेगा कि कुछ समय के लिए कि शायद ये बदमाशी कर रहा है, हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग रन में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के आधार पर का प्रयास करता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी। मैं एमफिल कर रहा था जेएनयू से, और मेरा उसी दौरान एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया सोशल साइंटिस्ट के रूप में। और मेरा जो एरिया था वो सिंगरौली रीजन था, रिहंद और सिंगरौली है यहाँ पे, विंध्याचल, यूपी एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है वहां पे। और मैं 3-4 बार वहां पे विजिट कर लिया था एज पार्ट ऑफ माई एनटीपीसी वर्क, और बहुत सारा स्टडी मैंने किया हुआ था एनटीपीसी के बारे में, मुझको बहुत सारी ज्ञान थी। और जब मैं पीएचडी के लिए अपने सुपरवाइजर के पास गया, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का अगर आपने नाम सुना होगा, इज वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, तो उनके साथ मैं पीएचडी कर रहा था। आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि उनके साथ काम करने का मुझको मौका लगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताइए किस टॉपिक पे आप काम कीजिएगा। तो मैंने बताया कि सर इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। तो सर ने मुस्कुराया और कहा ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप दिल्ली की जितनी लाइब्रेरीज हैं वहां चले जाइए और देखिए कि वहां कौन कौन से किताब है, लिस्ट कलेक्ट करके लेते आइए। मैं बहुत यंग था, आप ही आज हुआ अंदर अंदर। मैंने बोला कि सर देखिए हमको परेशान करने लगता है। मैं इतने दिन से मैं एनटीपीसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपर्टीज है एनटीपीसी के ऊपर, इतनी किताबें मैंने पढ़ी हैं एनटीपीसी के ऊपर, मैंने फील्ड विजिट किया हुआ है, और उसके बाद सर कह रहे हैं कि जाके लाइब्रेरी देख लो। और ये जून उनका महीना था, बहुत गर्मी थी, हालत खराब हो जाती थी, लेकिन चूंकि अब सर ने कह दिया था तो मैं डेली सर को कोसता हुआ जाता था, और जितने भी दिल्ली के 8-10 जो अच्छे अच्छे लाइब्रेरी थे वो सारा मैं विजिट किया, और वहां पे लाइब्रेरी वाइज जो है किताबें मैंने नोट कर ली कि रतन टाटा लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें ये किताब, जेएनयू लाइब्रेरी उसमें ये किताब, आईसीएसआर लाइब्रेरी उसमें ये किताब, ऐसे करके मैंने कम से कम 300-400 किताबों की लिस्ट इकट्ठी कर ली। उस समय तो मुझको उसकी अहमियत समझ में नहीं आई, सबमिट करने कौन सी किताब पढ़ी, और एट विल मैं वहां जा जाकर उस किताब को निकाल कर उस पर काम करके मैं लगा। तो मेरे पास पूरा लिस्ट था किताब का, 250 किताब का, उसको मैंने बिbliography में डाल दिया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपका सुपरवाइजर कुछ आपको बोल रहा है तो ही मीन समथिंग फ्रॉम यू, जो आपको उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका नॉलेज जो है बहुत सैलो है, और आपका सुपरवाइजर जो है आपके तरह से 50 स्टूडेंट को ऑलरेडी इस तरह के काम को करा चुका है।
तो वो जो कह रहा है उसके बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सुपरवाइजर के बात को सुने और एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस, क्योंकि सिनॉप्सिस जैसे मैंने कहा कि वो एक खाका होता है, एक नक्शा होता है जिसके आधार पे आप बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने रिसर्च को आगे करने का प्रयास करते हैं। तो एक मैं फॉर्मेट बताता हूं, आप इसको नोट कर लें और एक एक करके मैं उस फॉर्मेट को बताते चलूंगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट जो है आपको फाइनली रिसर्च तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सबसे पहला है इसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का विवरण। तीसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चौथा है इनएडिक्वेसीज इन अर्लियर स्टडीज, पूर्व के अध्ययनों में कमियां, इनएडिक्वेसीज इन अर्लियर स्टडीज। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपका आएगा हाइपोथेसिस। चाहे तो आप इसको रिसर्च क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं हाइपोथेसिस को। कुछ लोग हाइपोथेसिस यूज करते हैं, कुछ लोग रिसर्च क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद आपका आएगा मेथोडोलॉजी। उसके बाद आएगा आपका यूनिवर्स, जिस फील्ड का आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड पे आप काम कीजिएगा उसके बारे में। उसके बाद आप लिखिएगा चैप्टराइजेशन। आप चाहें तो उसके बाद टाइम फ्रेम भी दे सकते हैं, टाइम फ्रेम कि किस किस पीरियड में क्या क्या कीजिएगा। तो है आपका बिलियोग्राफी आ जाएगा, संदर्भ, जो जो किताबें आपने पढ़ी हैं इस काम को करने के लिए। ये आपका सिनॉप्सिस का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने, जिस बात को बांध लिए आप, तो आपका, मैं अभी चुटकी बजा रहा था आपके स्क्रीन पे, वो यह है कि में एक धागा है, जिस धागे को आपको पकड़ना है, उस रिसर्च की आत्मा है। दिया कि ये सारी चीजें लिखनी है, इन सारे चीजों में लिखा जाएगा एक ही चीज, लेकिन लिखने का तरीका जो है आपका बदल जाएगा। समझ रहे हैं बात? लिखिएगा वही चीज, लेकिन लिखने का तरीका जो है आपका बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, लीजिए आप कोई एक टॉपिक आप ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी टॉपिक कर लीजिए, भारत की जनसंख्या से फॉर एग्जांपल, है ना। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा? इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। और जो इंट्रोडक्शन की बात मैं अभी आपसे कर रहा हूं, तो आप फाइनली राइटअप कीजिएगा तो वही इंट्रोडक्शन आपको वहां पे भी लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति को सारी चीजें समझ में आ जाए। और कंक्लूजन को भी पढ़ने के बाद हमको लगता है कि भाई उस किताब के बारे में हम बहुत कुछ जान गए हैं। समझ रहे हैं ना? तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? Introduction is summation of the things which you are going to do in coming pages.
जो आने वाले पेजेस में जो आप काम करने जा रहे हैं, वो उन चीजों को आप इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? एंड व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन इज समेशन ऑफ द इवेंट्स व्हिच यू हैव नरेटेड इन प्रीवियस पेजेस, जो पहले के पेजेस में जो आपने काम किया है। कर रहा है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव ये है कि हमारे पास वर्कफोर्स बहुत बड़ा हो गया, नेगेटिविटी ये है कि भाई आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन हो गया आपका, समझ में आ गई बात? कहीं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो रोक के मुझको पूछ लीजिए, आगे बढ़ूं मैं। अब दूसरा मैंने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का विवरण। कुछ समस्या होगा तभी तो आप काम कीजिएगा ना। अब आप कह रहे हैं कि जनसंख्या तो एक तरफ तो समझ में आ रही है बात? अब ये जो आपने इनएडिक्वेसीज इन अर्लियर स्टडीज दी थी, यही आपका जो है एक विषय वस्तु हो गया जिसको आप आगे के अध्ययनों में करने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसी इनएडिक्वेसीज इन अर्लियर स्टडीज के ऊपर होगी। जो कमियां थी उनको तो फोकस करते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिएगा। जानते हैं क्या होता है जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग पूछता है कि अच्छा टेल मी, so many works have already been done on this area, what new you have done, what new you have done in this area? तो आप ये बता सकते हैं कि सर ऐसा है या मैडम ऐसा है कि ये ग्रे एरियाज था जिसपे अभी तक काम नहीं था और इस ग्रे एरिया पे मैंने काम किया है, इसलिए मेरा रिसर्च जो है यूनिक है और it contributes to the body of knowledge। समझ में आ रही बात? तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है उन सारे इनएडिक्वेसीज इन अर्लियर स्टडीज के ऊपर बिल्डअप होगा, जो अध्ययनों में कमियां थी उनके ऊपर बिल्डअप होगा, जो अभी तक काम नहीं हुआ है या हुआ भी है जिसमें ग्रे एरिया रहेगी, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर जो है आपका हाइपोथेसिस बनेगा। नाउ यू टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज हाइपोथेसिस? आर दे रिलेटेड और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कोई बता सकता है क्या? एनीबॉडी? दो तीन चेहरे मुझको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। मिनती वर्मा, मीजी सिंह, असित कुमार मोहंती, विकास कुमार, चंद्रभाल तिवारी जी, अश्विनी, सुनीता जी,
जिन लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी तो ऑफ किए आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में, ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी ऑन कर लिए कैमरा अपना, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस क्या होता है? बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, सब जानते हैं, हमको पता है, लेकिन आप लोग एजिटेशन में नहीं बोल रहे हैं. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? So what I think is ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस में वो वही डिफरेंस होता है जो एक तरह से इंटेंट और बिलीफ में होता है, कि आप हाइपोथेसिस इज काइंड ऑफ वो आप जो ऑलरेडी एक अवधारणा बना के रखते हैं कि हाँ ये या किसी भी टॉपिक पे आप जैसे काम करना चाहते हैं, सपोज आप दलित के ऊपर काम कर रहे हैं या दलित पेट्रियार्की के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी एक हाइपोथेसिस हो जाती है कि हाँ जो दलित पेट्रियार्की जैसी चीज है, आपने वो हाइपोथेसिस बना लिया, जो भी आइडेंटिटी मूवमेंट चले उसमें आपने ये बना लिया कि हाँ ठीक, विमेन के ऊपर वो दलित के समाज की तरफ से एक पेट्रियार्की की गई, तो वो आपका लाइक एक हाइपोथेसिस हो जाता है. इन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपका इंटेंट कहीं ना कहीं हो जाता है कि हाँ आपका इंटेंशन आप सच में उन चीजों को क्लोजली देखते हैं, आइडेंटिटी मूवमेंट को क्लोजली देखेंगे, फिर विमेन को किस तरीके से उस मूवमेंट्स में उनको क्या प्लेस दिया गया, उनको किस तरीके से डिफाइन या रीडिफाइन उनके पोजीशन को किया जाता है, और क्या सच में वो मतलब पेट्रियार्कल सेंस में हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वगैरह में आप उसको जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. Sir, I would like to add on. हाँ जी, बोलिए. Sir, according to me, objective it is something that I have decided to achieve, and hypothesis it is of tentative solution of your decision. It may be happening, it may not be happening. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो hypothesis का मतलब in short ये होता है, and objective it is that I have decided कि मेरे को इसी restricted area पे ही काम करना है और मुझे यही achieve करना है. But hypothesis से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. So it is of my view. वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया. मैं थोड़ा सा उसको और ब्रश अप कर देता हूँ. ऑब्जेक्टिव जो है आपका उद्देश्य है, ठीक है, और हाइपोथेसिस आपका जो है टेंटेटिव क्वेश्चन है. उद्देश्य ये है कि आप करेंगे. मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं ये पता लगाने का प्रयास करूंगा कि भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ठीक है, ये उद्देश्य हो गया. और हाइपोथेसिस क्या होगा इससे रिलेटेड, कि भारत में जनसंख्या के बढ़ने का कारण कम उम्र में विवाह होता है. ठीक है, समझ में आई बात. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य लगाने का प्रयास करेंगे. टेंटेटिव क्वेश्चन है जिसको हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के उपरांत 3 तरीके के रिस्पांस आ सकते हैं. पहला रिस्पांस ये होगा कि आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा, जो आपने बनाया था कि कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या बढ़ रही है. हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं, कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. और तीसरा जो है संभावना ये होता है कि पार्शियली करेक्ट हो जाए, कि नहीं, कुछ केसेस में कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या बढ़ती है, बाकी केसेस में नहीं होती है. समझ में आ रही बात? तो हाइपोथेसिस आपका टेंटेटिव क्वेश्चन है, या इसको आप रिसर्च क्वेश्चन के रूप से भी बुलाते हैं. जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि इसको आप रिसर्च क्वेश्चन के रूप में भी मान के चलते हैं, जो कि आप उस रिसर्च के दौरान टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद उस फाइनल इन्फरेंस आप देते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या बनेंगे? आपके ऑब्जेक्टिव्स वो बनेंगे जो ग्रे एरिया है. वो आपने इनएडिक्वेसीज इन अर्लियर स्टडीज में बताया था कि जो पुराने अध्ययनों के आधार पे आपने कहा था कि ये एरिया में काम नहीं हुआ, इस एरिया में काम नहीं हुआ, इस एरिया में काम नहीं हुआ, या इस एरिया में काम हुआ है लेकिन एक्स एस्पेक्ट से नहीं हुआ, वाई एस्पेक्ट से नहीं हुआ, जेड एस्पेक्ट से नहीं हुआ है. तो वो सारे आपके जो है ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे. समझ में आ रही बात? और हर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपका हाइपोथेसिस बन जाएगा, एक टेंटेटिव क्वेश्चन बन जाएगा. उसको आप फील्ड में जाके टेस्ट कीजिएगा. तो तीसरा स्टेज ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेज आएगा आपका मेथोलॉजी. किस मेथड का प्रयोग करते हुए आपको स्टडी को करना, किस टेक्निक का प्रयोग करते हुए आपको स्टडी को करना. व्हाट इज अ मेथड? मेथड क्या होता है? Steps to conduct to come to the conclusion or to conduct any survey or any.
मेथड आपने कभी सुना है कि कॉम्परेटिव देंगे हम या एक्सप्लोरेटरी स्टडी का सुना है कभी? दीज आर मेथड्स। और दूसरा होता है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टेक्निक्स क्या है, प्रविधि क्या है कि आप इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग कीजिएगा, इंटरव्यू का प्रयोग कीजिएगा, फोकस ग्रुप डिस्कशन का प्रयोग कीजिएगा, है ना, सोशल सैम्पलिंग का काम कीजिएगा। ये सब क्या है, टेक्निक्स है। तो एक तो आपको मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, किस मेथड को लेके चले, एक्सप्लोरेटरी है, डायग्नोस्टिक्स है ना, कॉम्परेटिव है, किस मेथड का लेकर प्रयोग कीजिएगा। तो आपके नेचर ऑफ रिसर्च के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड का आप प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, आप वस्तु स्थिति आपको ज्ञात है, उसको आप एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, री इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है उसको करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आप कहिएगा कि आपका जो है रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहे हैं। या आप कुछ नए चीजों को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि माय रिसर्च इज एक्सप्लोरेटिव। समझ में आ रही बात? अब जो है टेक्निक्स की बात कर लीजिए। कोई फिक्स टेक्निक्स नहीं होता है डेटा कलेक्शन करने का। ये डिपेंड करता है कि आपका फील्ड क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं, किन लोगों के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसके आधार पर जो है आपको उसी तरीके का प्रविधि जो टेक्निक जो है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, इंटरव्यू शेड्यूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटरव्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चनर का भी प्रयोग कर सकते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए। समझ में आ रही बात? ये तीन ऐसे टेक्निक है जिसको अमूमन हम लोग अपने रिसर्च के दौरान यूज करते हैं, और तीनों टेक्निक बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, जिसमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी लोग गलत भी बता देते हैं। मैंने क्या कहा? इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर। क्या तीनों में क्या अंतर है जानते हैं आप? यस सर। चलिए मैं बताता हूं आपको, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। इंटरव्यू क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, जिसमें इंटरव्यूअर जो है, जो क्वेश्चन पूछने वाला है, क्वेश्चन पूछता है और इंटरव्यू जो है वो जवाब देता है, और साथ में उसका रिस्पांस को भी इंटरव्यूअर जो है बॉडी रिएक्शन बाकी सब चीजों को भी नोट करके रखता है अपने पास, जिससे कि उसको कुछ पता चल जाए कि किसी भी पार्टिकुलर इशू पे जो है किसका क्या रुख है, क्या विचार है। उसी तरीके से इंटरव्यू शेड्यूल होता है। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है कि रेडी टू हैंड जो है क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो बना के रखे रहता है पीस ऑफ पेजेस में, और वही क्वेश्चन पूछता है, अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, कितने बच्चे हैं, आपकी आय कितनी है, आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप फला चीज हो जाएगा तो आप कैसे कीजिएगा। तो वो इंटरव्यू शेड्यूल है जो कि आपके पास रेडी मेड है। और तीसरा जो क्वेश्चनर मैंने कहा, इंटरव्यू शेड्यूल को जो इंटरव्यूअर है खुद लेके जाता है, और खुद ही रिसर्चर जो एडमिनिस्टर करता है, खुद पूछता है, और उसका जो रिस्पांस होता है अपने से भर लेता है उसमें। और क्वेश्चनर क्या होता है, सेम उसी तरीके का जो आपका फॉर्मेट रहेगा उसके पास, क्वेश्चन रेडी रहेगा उसमें, और उसको मेल कर दिया जाता है। मेल कर दिया, भेज दिया, ईमेल से दे दिया, और उसको रिस्पोंडेंट जो है फिलअप करके आपके पास भेजेगा। नाउ इन दैट केस वो रिस्पोंडेंट जो है उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उतना जागरूक होना चाहिए, या उतना अवेयर होना चाहिए कि वो जो है भर के उसको आपको भेज दे, है ना। तो ये तीन तरीके के प्रविधि एक बहुत रिलेटेड मिलता जुलता है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं आपके साथ। इसमें से कौन सी प्रविधि आप यूज कीजिएगा ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पोंडेंट कौन है। उसी तरीके से आप जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 50,000 पॉपुलेशन है वहां पे, तो क्या 50,000 का आप कर लीजिएगा एक साल में, 2 साल में? क्या 50,000 से के ऊपर आप काम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से भी आप 2 सब डिवीजन ले लेते हैं, एक विलेज ले लेते हैं, या 2 विलेज ले लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं सैम्पलिंग करने का प्रयास करते हैं। तो दीज आर टेक्निक्स विच यू यूज ड्यूरिंग योर रिसर्च। और जैसा जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस टेक्निक्स को यूज करने का कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है।
यू आर द मास्टर ऑफ योर रिसर्च। आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग आप करना चाहते हैं और कौन सा टेक्निक जो है आपके रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा सुलभ रहेगा, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो आप जो है मेथोलॉजी का प्रयोग कर लिया, यूनिवर्स का सिलेक्शन करना है आपको, है ना? कौन सा फील्ड रहेगा, जैसे मैंने बताया कि फील्ड जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। जहां पे आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं वो फील्ड जो है वहां पे आप जाकर डेटा कलेक्ट कर पाए, ये इतना वायबल होना चाहिए फील्ड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर करना है वो जो है करने के लिए तैयार हो जाए। अगर मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रोस्टिट्यूशन का स्टडी करना चाहता हूं, या कोई महिला ये डिसाइड करती है कि मैं प्रोस्टिट्यूशन का स्टडी करना चाहता हूं और किसी कोठे का स्टडी करना चाहती हूं, कल को स्टडी करने के लिए गई, बोली कि सर मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी वहां पे, वहां तो बड़ा दिक्कत है, कैसे कर पाऊंगी? तो दैट यू हैव टू डिसाइड इन द बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च ओनली, कि कहां कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में कर रहे हैं, कैसे कीजिएगा, दैट यू हैव टू डिसाइड। और आप अगर एक बार कमिट कर दिए तो बाद में 2 साल के बाद कमिंग बैक की गुंजाइश नहीं है। जैसा मैंने अलवर वाले केस में बताया था कि लड़का आके कहता है कि वहां प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो क्या कर लेगा सुपरवाइजर? क्या कर लेगा सुपरवाइजर? आपके जगह पर जाकर रिसर्च तो करेगा नहीं, रिसर्च आप कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ सच बताएं और केवल सच बताएं, उसको बरगलाएं नहीं, क्योंकि उसको गलत बताइएगा, गलत इंफॉर्मेशन दीजिएगा, उसको ब्लफ कीजिएगा तो अल्टीमेटली आप उसका रिपोर्केशन आप खुद झेलिएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो यूनिवर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। उस यूनिवर्स से कितना से लिए भी कोई क्वांटिटेटिव कोई क्राइटेरिया अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 300 लिया तो किस आधार पे लिया, 500 रिस्पोंडेंट लिया तो किस आधार पे लिया, और अगर आपने इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग किया तो क्यों किया, क्वेश्चनर का प्रयोग किया तो क्यों किया, और अगर किसी प्रविधि का प्रयोग किया तो क्यों किया। ये भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप अच्छे से बढ़ पाइएगा। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होता है कि आप कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लेके काम करने का प्रयास करें। ठीक है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी थ्योरीज की गई हैं सोशियोलॉजी में, सोशल साइंसेज में। तो क्या आपका रिसर्च जो है किसी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का प्रयास कर रहा है? तो अगर लेके चलने का प्रयास कर रहा है तो उस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को आप एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिएगा अपने रिसर्च रिपोर्ट में, और साथ ही साथ जो है जब फाइनली आप रिपोर्ट ले और कितना डाइवर्ज कर रहा है आपका फाइंडिंग, जो मैं कह रहा हूं उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए आप। सोशल साइंस में थ्योराइजेशन कर दिया गया, कोई बहुत बड़े स्कॉलर ने कुछ थ्योरी बनाई और आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को लेकर अपने स्टडी को करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका रिसर्च जो है दैट इज समवेयर वेरी मच रिलेटेड विद दैट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब 2 संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना ये हो सकती है कि आपका जो फाइंडिंग्स आए उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से मर्ज करता हुआ रहे, कन्वर्ज करता रहे। अगर कन्वर्ज करता हुआ है तो इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको आप कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि सोसाइटी उसी धारा में बह रही है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आपका रिजल्ट जो है इंटायरली अपोजिट आए या डाइवर्ज करता हुआ है तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। तो इसका मतलब है कि आप न्यू डोमेन ऑफ फाइंडिंग्स जो है, न्यू डोमेन ऑफ नॉलेज जो है आप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और अब बताइएगा कि भाई पार्सस ने ये कहा था या मटन ने ये कहा था, तब है कि हम कुछ नया स्टैब्लिश किए हैं। समझ में आ रही है बात? अल्टीमेटली आप रिसर्च करने जा रहे हैं, री प्लस सर्च। जब सब कुछ एज इट इज आप बता दीजिएगा तो फिर आपका रिसर्च का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप तो कुछ नवीनतम चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो उस तरह से उसको भी बताना है ना। अब आया चैप्टराइजेशन की बात। आपने अगर 5 ऑब्जेक्टिव लिया था, ऑब्जेक्टिव्स आप ली थी ना शुरू में, मिजी जी, मिनती जी, आपने ऑब्जेक्टिव्स लिया था ना? यस सर। यस सर। आपने ऑब्जेक्टिव लिया कि मैं लखनऊ से कानपुर जाऊंगा, आपने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि मैं लखनऊ से कानपुर जाऊंगा,
दूसरा ऑब्जेक्टिव लिया कि मैं ये पता लगाना पड़ूंगा, प्रयास करूंगा कि कानपुर में खाने की क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आपका चैप्टराइजेशन भी जो होगा वो उस ऑब्जेक्टिव का, जो आपके लिए अलग हो सकता है, मैं केवल एग्जांपल देके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं सोशल एस्पेक्ट का स्टडी करूंगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का स्टडी करूंगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट का अध्ययन करूंगा, रिलीजियस एस्पेक्ट का अध्ययन करूंगा और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट का अध्ययन करूंगा। 5 आपने ऑब्जेक्टिव्स लिया था। तो उस ऑब्जेक्टिव को लिए थे और उससे 5 ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है आपने 5 हाइपोथेसिस भी बनाई थी ना, टेंटेटिव रिसर्च क्वेश्चन बनाया था। अब इसका रिपोर्ट, यानी कि हर एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एक चैप्टर हो सकता है या 2 ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मिलाकर एक चैप्टर आप बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर 5 ऑब्जेक्टिव लिया है और 5 ऑब्जेक्टिव को सेपरेटली आप लेके चलना चाहते हैं तो 5 आपका चैप्टर तो बन गया, ठीक है। और उसी तरीके से एक चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा और एक चैप्टर जो है आपका समरी ऑफ फाइंडिंग्स का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 5 चैप्टर, 5 ऑब्जेक्टिव और 5 हाइपोथेसिस को फोकस करता हुआ हो गया। एक इंट्रोडक्शन जिसमें सारी डिटेल दीजिएगा रिसर्च के बारे में, और एक कंक्लूजन या समरी ऑफ फाइंडिंग जिसमें सारा जो आपका रिसर्च का फाइंडिंग्स आया उसको आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका 7 चैप्टर आ गया, है ना। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आप ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, जो आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, जो आप चैप्टर्स लेके, चैप्टराइजेशन लेके चल रहे हैं, और जो आप इंट्रोडक्शन लेके चल रहे थे, और जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लेके चल रहे थे, सारे चीज में एक ही चीज लिखा जाएगा। एक ही तरीके से सब कुछ बढ़ेगा। जब इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास कीजिएगा तब उन 5 पॉइंट्स को लाइएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में है कि इन 5 पॉइंट्स पे जो है सोसाइटी का क्या रुख है। जब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दीजिएगा तो उस 5 पॉइंट को स्पेसिफिकली हाईलाइट करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल में ये प्रॉब्लम, इकोनॉमिक में ये प्रॉब्लम, पॉलिटिकल में ये प्रॉब्लम, रिलीजियस में ये प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? और फिर जो है उस 5 से रिलेटेड आपने 5 ऑब्जेक्टिव बना दिया, उसी 5 से रिलेटेड आपने 5 हाइपोथेसिस बना दिया, और फाइनली चैप्टराइजेशन जब आप करने जा रहे हैं तो उसी तरीके से आपने चैप्टराइजेशन में भी 5 चैप्टर स्पेसिफिक रख दिया। समझ में आ रही बात? तो ये जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपके पूरे रिसर्च में कि आप जो शुरू में जो खोजने का प्रयास किए तो लास्ट तक वही खोजते रहे, वही फोन के आप जो है बताने का प्रयास किए। जब आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाइएगा, डेटा कलेक्ट करने के लिए ना, तो उस इंटरव्यू शेड्यूल में उस 5 ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा जो कि 5 चैप्टर में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव वाइज जो है आप क्वेश्चन बनाइएगा, और एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है वो एक चैप्टर में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उस तरीके से 5 ऑब्जेक्टिव आपका है तो 5 चैप्टर के हिसाब से आपने डेटा अलग अलग कर एक सेपरेट उसमें जो है कर लिया। इसमें आपको क्लैरिटी रहेगी। नहीं तो पता चला कि सोशल का जो है आपने 25वें नंबर उस पर लाके रख दिया टेबल पे, और वो जो है इकोनॉमिक में आ रहा है और इकोनॉमिक वाला जो है पहले में ला दिया, मैसअप हो जाएगा सब, है ना। तो सोशल इशू लेके चल रहे हैं तो एक साथ सब सोशल रख लीजिए, वो एक चैप्टर में आएगा आपका। तो टेबल बन गया सब, उस टेबल को आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब तो आपके पास लैपटॉप आ गया है, अब तो आपके पास कंप्यूटर आ गया, आप आराम से रिसर्च कर पाते हैं। पहले जब हम लोग करते थे तो उसमें उतनी सुविधा नहीं थी। तो हम लोग को ये बताया गया था कि आप एक ऑब्जेक्टिव से लीजिए और एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 8 या 10 पैरा इंडिकेटर्स और खींच लीजिए। सोशल में क्या क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस देखना चाहते हैं तो सोशल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। उसका फैमिली देख सकते हैं, उसका कास्ट देख सकते हैं, उसका जो है ऑक्यूपेशन दे सकते हैं। इस तरह से करके 10 इंडिकेटर आपने बना दिया ना, और उस 10 इंडिकेटर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपने बना दिया, तो एक सोशल से लेके आपका 40 क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रही बात? उसी तरह से इकोनॉमिक का एस्पेक्ट लिया, उसका 10 इंडिकेटर बनाया, हर इंडिकेटर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन बनाया, तो सब मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक का बन गया। और
जो हमको बताया गया था वो ये कहा गया था कि सारा जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, हर क्वेश्चन एक टेबल बनेगा, उस टेबल को स्प्रेडशीट पे आप लेके रख दीजिए, पहले टेबल को एक्सप्लेन कीजिए, टेबल क्या कहने का प्रयास कर रहा है, और उसके बाद उसको सेकेंडरी लिटरेचर के साथ सब्सटेंशिएट करने का प्रयास कीजिए। ये जब पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा उसके बाद उस टेबल का इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखिए और उसका कंक्लूजन लिखिए, एक पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इस तरीके से 5 आपने अगर चैप्टर लिया है तो 5 चैप्टर आपका हो जाएगा, और जब 5 चैप्टर लिखा जाएगा उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखिए और कंक्लूजन लिखिए उसमें। समझ में आ रही बात? तो ये अगर आप कर पाएंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं तो बहुत मुश्किल रहेगा करना। और लास्ट में आपको जो है बिब्लियोग्राफी देना है। बिब्लियोग्राफी वो सारी किताबें हैं जिनका आपने रेफरेंस दिया है अपने स्टडी में, अपने रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। एपीए पैटर्न है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसका पैटर्न है। कौन सा पैटर्न को आप यूज कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, एक पैटर्न को ही यूज कीजिए, उसी को पकड़ के स्टिक करके चलने का प्रयास कीजिए। साइटेशन कैसे होगा, है ना, फुटनोट लिखा जाएगा या इंडरनोट कैसे लिखा जाएगा, विद इन टेक्स्ट जो है साइटेशन देना है या फुटनोट में देना है, जो भी आपको डिसाइड करना है वो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपने तरीके से जो भी आपको डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए राइट फ्रॉम डे 1, और पूरे थीसिस में वही सेम पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि कहीं कुछ कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं साइटेशन का पैटर्न कोई रख दिए, कहीं बिब्लियोग्राफी के पैटर्न कुछ लेके चल रहे हैं, तो वो जो है खिचड़ी हो जाएगी। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक पैटर्न को लेके चलिए और थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रिसर्च वर्क जो है आप उसको लेके चलने का प्रयास कीजिए, तो ये क्लैरिटी रहेगी। तो ये पूरा एक खाका जो है मैंने आपके सामने रख दिया कि रिसर्च कैसे करना है। देखिए बातें तो बहुत है, और जो जल्दी जल्दी में जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके संक्षिप्त में मैंने बता दिया था, उस पर भी घंटों घंटों चर्चा हो सकती है एक एक स्पेसिफिक थ्रेड को लेकर, तो समय बहुत लगेगा। हमको लगता है कि ऑलरेडी हम लोग जो है 1.25 घंटा से ज़्यादा निकाल चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा आप लोगों का। अगर आपको कोई दुविधा है, कोई कंफ्यूजन है, तो थोड़ा चर्चा कर लें 5-10 मिनट में, फिर हम लोग खत्म करेंगे। रियली थैंक यू सर। और एक्चुअली वास्तव में यह रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर के रिसर्च स्कॉलर्स ओरिएंटेड डिस्कशन था और ओरिएंटेड लेक्चर था। और मैं तो रियली में सर घर में हूँ और रूम में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो मैं तो गैलरी में ही बैठा हुआ हूँ। और जैसे कि हम लोग एक टीचर के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, सर ने वैसे ही हमारे साथ बैठ करके बातचीत की है। तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है। और सो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि किसी का भी कोई संदेह है टॉपिक से रिलेटेड, जो सर ने जिस टॉपिक के अंदर मतलब लेक्चर डिलीवर किया, जिन तथ्यों पर बात किया है, तो किसी भी पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस करके सर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार सर। शिल्पा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए सबसे पहले तो। हाँ 1 मिनट। हाँ सर, मैंने शुरू में ही कहा था कि कैमरा ऑन करके रखिए आप। कैमरा ऑन। नमस्कार। ओपन है मैम। हाँ नाउ ओपन है मैम। सर जी मैं पुणे से बोल रही हूँ। जी मैम। और मुझे एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम फील्ड पे होते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कुछ बार ऐसे हो जाता है कि जो व्यक्ति हमें बात बता रहा है तो वो कह देता है कि ये आप मत बताइए या एक मत लिखिए, तो उसका यूज एज संदर्भ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत बहुत बार आती है। देखिए रिसर्च जो है एनोनिमस होता है, ठीक है, और हमेशा ये कहा जाता है कि आप जो है जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा। तो आप उनको पहले तो ये इस बात को कन्विंस करने का प्रयास करें कि भाई ये रिसर्च जो है एकेडमिक पर्पस के लिए हो रहा है, इसका कोई भी पॉलिटिकल और दूसरा माइलेज लेने का प्रयास नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये आपका नाम एनोनिमस रखा जाएगा। तीसरा, सबसे पहला धर्म आपका ये होता है कि जब भी आप किसी फील्ड को जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आप बता दें कि आप रिसर्चर हैं और
इसका कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक इसका अभिप्राय नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट के एजेंट हैं, अगर गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा पैसा उसका मिलना है वो नहीं मिलेगा, या आपको अगर ये बता दे कि नहीं मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो शायद सरकार कुछ दे दे, तो खराब जवाब, गलत जवाब वो देने लगते। तो हमको सबसे पहले तो अपना जो है एक बिल्डअप करना पड़ेगा अपना नेटवर्क उनके साथ, और उनको ये समझाने की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है जब भी हम फील्ड में जाएं कि हम एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर इसको काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम एकेडमिक काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका जो है ना कोई सकारात्मक ना ही नकारात्मक इसका जो है परिणाम आपके जीवन में भविष्य में होने वाला है, जिससे कि वो सकारात्मक जवाब देने का, सही तरीके से जवाब देने का प्रयास करें। दूसरा, एज ए रिसर्चर जो है आपको अपना आंख कान सब नाक सब खुला रखने की जरूरत पड़ती है। अगर आप जा रहे हैं वहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी आर्थिक स्थिति के बारे में और वो बोल रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप ऑब्जर्व करके भी देखने का प्रयास कीजिए कि भाई वो 3 मंजिले वाले पक्का मकान में रह रहा है, उस घर के सामने 2 जीप लगा हुआ है और एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो वो गरीब नहीं हो सकता है। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन पावर भी उसमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आप कीजिएगा तो कोई आपको जवाब नहीं देगा। किसी भी महिला से पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि क्या आपका पति रोज शराब पीता और आपको मारता है, महिला का क्या जवाब रहेगा? बोलेगी हाँ, कभी नहीं कहेगी। तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से पूछना पड़ेगा जिससे कि वो जवाब दे। अगर किसी माँ से पूछ दीजिए कि क्या आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है क्या, कितना भी बड़ा ड्रग एडिक्ट होगा नहीं बताएगी वो। या हिंदी मुस्लिम दंगा हुआ कहीं पे और हिंदू से पूछा जाए कि अरे पता चला कि हिंदू भाई आप लोग जो है मुस्लिम को मार दिए 50 आदमी को, तो क्या वो मानेगा? या मुस्लिम से पूछ दीजिए तो नहीं मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो आपको क्वेश्चन को नेचर इस तरह से करना पड़ेगा, पुटअप इस तरह से करना पड़ेगा जिससे कि वस्तु स्थिति को जो है आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम मिक्स्ड मेथड अप्रोच लेके चलने का प्रयास करेंगे। वन मेथड और वन टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू फेच यू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा 2 से ज्यादा मेथड्स को या टेक्निक को। आप देखिए, आप एक तरफ इंटरव्यू भी ले रहे हैं, दूसरा आप दूसरे फोकस ग्रुप डिस्कशन करने का प्रयास किए, ग्रुप के 10-20 लोगों को बैठा के उनसे